Now, the next topic is atomic structure. The next topic is atomic structure. ठीक है, very important topic. इसमें से हमेशा 2-3 सवाल आते ही हैं. ठीक है, this is a very mark fetching topic. So let's start atomic structure. Now obviously CBSE के कुछ नए guidelines आए हैं. ठीक है, some portions have been removed from atomic structure. ठीक है, but वो आपके लिए remove हुआ है या नहीं, या अगर आपके टाइम पे वो वापस आ गया तो उसका कोई भरोसा नहीं है. So in any case, we will be doing the complete atomic structure, ठीक है, as I have been discussing all of these years. ठीक है, so we'll discuss the complete atomic structure क्योंकि हो सकता है आपके टाइम पे सिलेबस में वापस आ रहा है, आपके लिए तो काफी टाइम है. So we will discuss this completely. Okay, so let's start. So atomic structure आपने एटलीस्ट अपने 10th क्लास में एटलीस्ट क्या पढ़ा होगा? You would have definitely studied the Rutherford model. Yes, no? ठीक है, you would have studied the Rutherford model. You may have studied the plum pudding model. I'm not sure आपने ये पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा. ठीक है, आपने पढ़ा है. ठीक है, so we'll start in atomic structure. The first theory for atoms was Thomson model. ठीक है, so Thomson model was also called as, or Thomson model is also called as, अभी जस्ट मैंने बताया. Correct. Thomson model is also called as the plum pudding model. ठीक है, आप लिखते जाओ. ठीक है, या फिर हो सकता है आपने भी पढ़ा होगा कि this is also called as the watermelon model. ठीक है, sometimes is also referred as the watermelon model. आप लोग नोट करते जाओ, फटाफट नोट करते जाओ. ठीक है, so in Thomson model, the atom was assumed to be a sphere. ठीक है, and in this sphere the positive charge was distributed uniformly. ठीक है, in this sphere the positive charge was assumed to be distributed uniformly. ठीक है, sphere where positive charge and mass was distributed uniformly throughout the volume. ठीक है, एंड अगर पॉजिटिव चार्ज है, इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज एंड द एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल, ठीक है, तो फिर ऐसे केस में और क्या प्रेजेंट होना चाहिए बताओ? नॉट इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, यहाँ पे थॉमसन मॉडल के टाइम्स पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे. इन केस ऑफ थॉमसन मॉडल देयर वाज नो प्रोटॉन, देयर वाज नो इलेक्ट्रॉन, देयर वाज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. ठीक है, देयर वाज आल्सो नो न्यूट्रॉन्स. सो इन केस ऑफ थॉमसन्स मॉडल, positive charge was distributed throughout the structure of the atom. ठीक है, and negative charge were distributed uniformly. ठीक है, negative charge was distributed uniformly, ठीक है, or symmetrically, just like seeds in a watermelon. ठीक है, negative charge was distributed symmetrically. ठीक है, लिखते जाओ. Positive charge and mass was distributed throughout the volume of the atom. ठीक है, negative charge was distributed symmetrically like seeds in a watermelon. लिखते रहो. Done. ठीक है, however Thomson model was a very old model. ठीक है, and what were the advantage and disadvantage for this?
what was the advantage and disadvantage for the Thomson model? Correct. The advantage was that Thomson's model was neutral. Okay. Apart from that, this was also the first model. And what were the disadvantages? Not position of electron. क्या हुआ? लिख लिया? करेक्ट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, इतना ही लिखा है. लिख लिया यहाँ तक? ठीक है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम पॉइंट्स ऑन थॉमसन्स मॉडल. ठीक है, मैं यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मिक्स ही करके लिख दूंगा. ठीक है. सो आई एम जस्ट राइटिंग द पॉइंट्स. आप खुद समझ सकते हो इसमें से कौन सा पॉइंट एडवांटेज है, कौन सा डिसएडवांटेज है. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दिस was the first model. This was the first model of an atom. ठीक है. Now, ठीक है, the disadvantage was ठीक है, the positive charge and the negative charge should not be stable as they should neutralize each other. ठीक है. thirdly it could not explain the observations of Rutherford experiment. Is this clear? ठीक है, यहां तक आप कंप्लीट कर लो. क्या हुआ? अगर पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज है तो वो तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए. ठीक है. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक एटम तो स्टेबल होता है. ठीक है. आपने जैसे कि अगर आपको अभी जो पता है, कि प्रोटॉन्स जो है वो अलग रहते हैं, न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग रहते हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं. ठीक है. बट यहाँ पर तो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या रादर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ ही प्रेजेंट है. तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए. ठीक है. बट स्टिल देन द एटम इज स्टेबल. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ थॉमसन मॉडल, बट अगेन दिस इज नॉट. ठीक है, लिख लिया? ऐसा थोड़ी ना है. हाँ, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इक्वल अमाउंट. अगर पॉजिटिव चार्ज 10 है तो नेगेटिव चार्ज भी 10 होगा. ठीक है, भले ही साइज में कम हो. ठीक है. बट जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. डन.
वेट करो, डन। थॉमसन्स मॉडल वाज न्यूट्रल, यस, थॉमसन्स मॉडल में एटम जो था दैट वाज न्यूट्रल, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट मॉडल इज बाय फार द मोस्ट फेमस मॉडल, ठीक है, which is your Rutherford's model, ठीक है, और द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और आल्सो कॉल्ड एज रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नाउ नाउ बिफोर वी डिस्कस दिस, ठीक है, बिफोर वी डिस्कस दिस, व्हाट वाज द सेटअप ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट? बताओ इसका सेटअप क्या कहता है? सेटअप का मतलब कि what all were required, ठीक है। of course the first thing that was required was a gold foil, ठीक है। गोल्ड फॉइल क्या था? इट वाज अ थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। एंड व्हाट वाज द थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल? व्हाट वाज द थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल, ठीक है। अब इसको याद रखो, द थिकनेस वाज अप्रोक्सीमेटली 1 मिली माइक्रोमीटर, ठीक है। हो सकता है आप कई बार हो सकता है आप कई बार देखो हो सकता है आप कई बार देखो कि 1 माइक्रोमीटर की जगह जो है आप 0.1 माइक्रोमीटर देखो, ठीक है। दिस इज फाइन, ठीक है, चल जाएगा। आप कोई सा भी एक वैल्यू भी ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे इन दिस केस द फर्स्ट सेटअप वाज द फर्स्ट थिंग दैट ही रिक्वायर्ड वाज गोल्ड फॉइल, ठीक है। सेकंड थिंग रिक्वायर्ड वाज अल्फा रे, ठीक है, और अल्फा रेज, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अल्फा रे गन, ठीक है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि अल्फा रेज का सोर्स, ठीक है, any source from which he could obtain alpha rays. Now what was the third requirement? Not lead plate. Lead plate तो backward side था. What was the other requirement? Correct, it was ZNS screen, ठीक है। ZNS screen का advantage क्या था बताओ? It was, yeah, what is its property? ठीक है, ऑलरेडी किसने लिख लिया है, it was fluorescent, ठीक है। एंड फ्लोरोसेंट का मतलब क्या है बताओ? फ्लोरोसेंट का मतलब क्या है? ठीक है, it showed a bright spark, where alpha particle hit, ठीक है, it showed a bright spark where alpha particle hit. एंड इसके अलावा, अच्छा यहां तक आप सभी ने लिख लिया? नहीं, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो को आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। डायग्राम तो आप सभी को आता है, ठीक है, एवरीबडी नोज दिस डायग्राम। ऑब्वियसली आपने हो सकता है स्लाइटली डिफरेंट डायग्राम पढ़ा होगा, बट इट्स द सेम थिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका आया गोल्ड फॉइल, ठीक है। यहाँ पे हुआ ZNS स्क्रीन, यहाँ पे हुआ अल्फा रे गन, ठीक है। फ्रॉम हियर यू हैव अल्फा रेज, ठीक है। दिस इज योर गोल्ड फॉइल, दिस इज योर ZNS स्क्रीन, ठीक है ना। ऑब्वियसली अल्फा रे पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, ठीक है। दे हिट दी गोल्ड फॉइल, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हुआ था बताओ? ठीक है, इसके बाद now most of the alpha rays went straight through, ठीक है, most of the alpha ray particles went straight through without any deviation, ठीक है। some scattered by small angles, ठीक है, some scattered by small angles, ठीक है। and very few, ठीक है, very few returned back, मतलब दूसरे पेन से, ठीक है, very few returned back along the same direction, ठीक है, और very few showed very large deviations, ठीक है। कंप्लीट कर लो इसे, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग इसे बेटर डायग्राम बना सकते हो,
मैंने ये रफली बना दिया क्योंकि आप सभी को ये डायग्राम बनाना आता ही है। ब्लू रेज इज दोज विच हैव कंप्लीटली रिटर्न बैक, ठीक है, या ब्लू रेज जो है ये वो लाइट है जो कि वेरी लार्ज एंगल से डेविएट हुआ, ठीक है। दीज हैव डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है, दिस हैज डेविएटेड बाय अ वेरी लार्ज एंगल। ठीक है, गोल्ड फॉल का थिकनेस जो आप कई बार देखोगे एज 0.1 माइक्रोमीटर, या हो सकता है आप कई बार देखोगे एज 1 माइक्रोमीटर, बस कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना। इज दिस डन? ठीक है, नाउ लेट्स राइट द पॉइंट्स। ठीक है, लेट्स राइट द पॉइंट्स। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन, ठीक है, और व्हाट वाज द थ्योरी पार्ट, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, रदरफोर्ड क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले रदरफोर्ड वाज एक्सपेक्टिंग, ठीक है, ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट थॉमसन्स मॉडल या थॉमसन्स मॉडल was being verified was being verified इन, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर ई इज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सो सबसे पहले थ्योरी पार्ट में क्या है कि रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू वेरीफाई, ठीक है, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू वेरीफाई द थॉमसन्स मॉडल, ठीक है। सेकंड थिंग, इट वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट all alpha particles should travel or should go straight through without any deviation, ठीक है। वाई? बिकॉज देखो क्या है, वेरी सिंपली, ठीक है, अगर आपके पास सपोज करो, अगर आपके पास 100 ग्राम्स ऑफ वट एवर मटीरियल है, ठीक है, अगर आपके पास 100 ग्राम्स ऑफ एनी मटीरियल है, ठीक है, अगर आपने उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया, ध्यान दो पहले, ठीक है, अगर आपके पास 100 ग्राम्स ऑफ अ मटीरियल है जिसको कि आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, सो एनी पर्टिकुलर एरिया ये तो काफी वीक होगा या ये तो काफी थिन होगा, yes no, ठीक है। now if you have 100 grams distributed uniformly over a large area, then any specific small area is very thin, ठीक है, एंड यहाँ पे अल्फा रे पार्टिकल्स जो है दोज आर लाइक बुलेट्स, ठीक है, तो अगर मैं इस पे बुलेट शूट करूंगा तो ऑब्वियसली एक पतला चीज तो कैन पेपर स्टॉप अ बुलेट, ठीक है, कैन पेपर स्टॉप अ बुलेट, अ पेपर कैन नॉट स्टॉप अ बुलेट, ठीक है। तो पेपर, अब बुलेट कितना भी स्लोली आ रहा है, बुलेट कितना भी फास्ट आ रहा है, पेपर जो है वो बुलेट को स्टॉप नहीं कर सकता, द बुलेट विल ऑलवेज पास स्ट्रेट थ्रू विदाउट एनी डेविएशन, समझ में आया, ठीक है। हाउएवर, ठीक है, इफ दिस 100 ग्राम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है, इफ दिस 100 ग्राम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, रादर, ठीक है, रादर सम पॉइंट्स आर थिक, ठीक है, एंड सम पॉइंट्स आर थिन, सम पॉइंट्स आर थिक एंड सम पॉइंट्स आर थिन, यानी कि यही 100 ग्राम अब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ये वाला पोर्शन जो है ये थिक है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है वो थिन है, तो हो सकता है कि यहाँ पे बुलेट जो है वो स्लोली पास करे या यहाँ पे डेविएट करे, बट यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट थ्रू हो जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आया ये? ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो हर एक सरफेस एरिया का प्रॉपर्टी जो था वो एग्जैक्टली सेम था, लेकिन अगर आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, सम पोर्शंस आर थिक, सम पोर्शंस आर थिन, ठीक है, और सम पोर्शन हैव मोर मटेरियल, सम पोर्शन हैव लेस मटेरियल, तो जहां पर भी लेस मटेरियल है वहां पर तो स्ट्रेट थ्रू हो जाएगा,
जहां पे मोर मटेरियल है वहां पे हो सकता है कि कुछ भी और प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो, या इट कैन बी स्टॉप्ड और इट मे शो सम डेविएशन. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है. नाउ इन केस ऑफ थॉमसन्स मॉडल, in case of Thomson's model, the mass was distributed uniformly. ठीक है, where the charge and mass was distributed uniformly. ठीक है, तो अगर ये चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो यानी कि लेट्स से दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, तो कौन सा केस हुआ बताओ? Thomson's model would have been which case? The case 1 or case 2? Correct. Thomson's model would have been case 1. Okay? And the expectation was that all of the alpha particles should go straight through without any deviation. Is this clear? Is this clear? Okay? Without any deviation, as alpha particles, had sufficient sufficient kinetic energy. ठीक है, यहां तक आप लिख लो पहले. यहां तक लिख लिया. ठीक है, सो दिस वाज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. सुन लो, आपको सारा एक साथ समझ में आ जाएगा. ठीक है, पहले आप सुनते जाओ. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन आप बताते जाओ. व्हाट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? RE is Rutherford experiment. Correct. The first observation was 99% of alpha rays. 99% of alpha rays straight through went straight through without any deviation. ठीक है. Now, what was the second point? What was the second point? बताओ, what was the second observation? Correct. Some rays were deviated. Some rays were deviated by small angles. ठीक है. And by far the most important observation was very few, और यहाँ पे नंबर क्या दिया रहता है बताओ? 1 in 20,000. ठीक है, very few alpha rays were deviated by large angles, and they retraced their path. ठीक है, retraced their path का मतलब क्या कि अगर उन्होंने इस पाथ से ट्रैवल किया तो वो वापस से इस पाथ से ही वापस आए हैं. ठीक है, retrace their path और 180 डिग्रीज ऑफ डेविएशन. ठीक है, लिख लो. लिख लिया.
retraced, TRACE, अच्छा नहीं, ठीक है, and they retraced their path. मैंने गलत लिखा, retraced. रीट्रेस यानी कि जो पाथ उन्होंने स्टार्टिंग में लिया वही पाथ उन्होंने वापस लिया, ठीक है. इफ समथिंग वेंट बाय यूजिंग दिस पाथ, ठीक है, देन दे रिटर्न्ड बैक ऑन द सेम पाथ. दिस इज कॉल्ड एज रीट्रेसिंग. लिख लें यहां तक, ठीक है. अब देखो अगेन इसके आगे का भी आपको पता है. व्हाट वर द कंक्लूजंस ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट? द फर्स्ट कंक्लूजन वाज correct. The first conclusion was most of the space in an atom, most of the space in an atom is empty. ठीक है. What was the second conclusion बताओ? Correct. ठीक है. All of the positive charge and almost all mass is concentrated at one point in the center of the atom called as the nucleus. ठीक है. फिर इसी का कंटिन्यूएशन क्या है? the negative charge is revolving around the nucleus like planets around the sun. ठीक है, कंप्लीट कर लो. अच्छा देखो, फर्स्ट पॉइंट, most of the space in an atom is empty. Second point, all of the positive charge, ठीक है, and almost all mass is concentrated at one point in the center of the atom. This is called as the nucleus. ठीक है. The negative charge is revolving around the nucleus like planets around the sun. नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट कैसे होगा? नेगेटिव चार्ज तो कांस्टेंट तो नहीं रह सकता. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. तो अगर नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट हो गया तब तो ये अट्रैक्ट करेगा ना. तो इसका मतलब दिस कैन नॉट बी कांस्टेंट, दिस हैज टू बी इन मोशन. ठीक है, डन. ठीक है ना. अगेन जस्ट लाइक थॉमसन्स मॉडल में कुछ पॉइंट्स थे, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं. ठीक है, आप एडवांटेज या डिसएडवांटेज आप खुद से समझ सकते हैं. ठीक है. तो सम पॉइंट्स ऑन रदरफोर्ड मॉडल. ठीक है. द फर्स्ट एंड बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज दैट, ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट disproved Thomson's model, ठीक है, and gave the solar system model
the solar system model of atom. सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है, कि जैसे न्यूक्लियस आपका एग्जैक्टली सेंटर, जैसे सन जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में होता है एंड सारे प्लैनेट्स जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इन एग्जैक्टली द सेम वे, इन एग्जैक्टली द सेम वे एट द सेंटर यू हैव योर न्यूक्लियस, ठीक है, एंड ऑल द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड ऑल द नेगेटिव चार्ज आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, just like planets are revolving around the sun. ठीक है, yes, the first point नहीं, conclusions are done, conclusions are done, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे हम points on Rutherford experiment लिख रहे हैं, ठीक है, some general points on Rutherford experiment जो है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। So this is your first point. First point लिख लिया? आप एक डाउट 40 बार पूछ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लार्ज डेविएटेड रेस का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे सेम पाथ कहेंगे, लार्ज डेविएशंस, ठीक है, ध्यान दो। सो अगर कोई चीज इतना से उठता है तो दिस इज अ डेविएशन, ठीक है, कोई चीज इतना से उठता है तो दिस इज अ डेविएशन। लार्ज डेविएशन का मतलब सिंपली अ लार्ज वैल्यू, ठीक है, बट ऑल ऑफ दीज आर आल्सो लार्ज डेविएशंस, उसमें से कुछ जो है वो अपना पाथ को रिट्रेस करते हैं, ठीक है, नॉट नेसेसरीली ऑल, फ्यू ऑफ देम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। नाउ द सेकंड पॉइंट, ठीक है, द सेकंड पॉइंट, Rutherford concluded, Rutherford concluded on the basis, on the basis of his calculation, of his calculations, that size of atom is approximately 10 to the power minus 10 meters, ठीक है, and size of nucleus is approximately 10 to the power minus 15 meters, ठीक है, लिखते जाओ। ठीक है, the third point is, the third point is he was able, he was able to explain the positive charge, yeah, he was able to explain why the positive charge and negative charge do not neutralize each other. He was able to explain why the positive charge and negative charge do not neutralize each other, ठीक है। However, next point, he, according to Maxwell's, लिखते जाओ, ठीक है, according to Maxwell's, करेक्ट, ठीक है, theory of electromagnetic radiation, according to Maxwell's theory of electromagnetic radiation, if a charged particle is being accelerated, लिखते जाओ,
if a charged particle is being accelerated, then it emits radiation, or it loses energy, in the form of radiation, Thus, the electron should spiral into the nucleus. लिखते रहो पहले आप. Should spiral into the nucleus in 10 to the power minus 8 seconds, and thus Rutherford atom should be unstable. Yes, exactly, same चीज. लिख लेके सभी ने. वापस से पढ़ रहा हूं मैं. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज बीइंग एक्सेलरेटेड, देन, ठीक है, then it emits radiation, then it emits radiation or it loses energy in the form of radiation. Thus, the electron should spiral into the nucleus in 10 to the power minus 8 seconds. And thus, yes, okay, and thus Rutherford atom should be unstable. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस का मतलब क्या है? ठीक है, स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि आइडियली अर्थ जो है वो अपना ऑर्बिट फॉलो करता है. ठीक है, अर्थ का एक सेट पाथ है, वो सन के अराउंड एक पर्टिकुलर पाथ जो है वो फॉलो करता है. ठीक है, बट इन केस ऑफ, या मैक्सवेल थ्योरी क्या बोलता है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल इज बीइंग एक्सेलरेटेड, अब ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, if anything is in a circular motion, it is always accelerated towards, correct, it is always accelerated towards the center. ठीक है, तो मैक्सवेल थ्योरी क्या बोलता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है, तो इट मस्ट एमिट आउट रेडिएशन. ठीक है, रेडिएशन अगर वो एमिट कर रहा है, ठीक है, अब आपको ऑलरेडी एनर्जी कंजर्वेशन तो पता ही है. ठीक है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर ये चीज मोशन में है तो इट इज इन मोशन. ठीक है, इट इज इन मोशन बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, एंड अगर आप यहां से रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी निकाल रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना चाहिए. यस और नो? ठीक है, एंड अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो इन दिस केस दिस इलेक्ट्रॉन शुड नॉट फॉलो दिस पाथ. ठीक है, instead the path that electron should follow should be something like this. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पाइरल करके न्यूक्लियस में जो है कोलैप्स कर रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरलिंग इनटू द न्यूक्लियस. ठीक है, एंड इट शुड हैपन विद इन 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड्स. ठीक है, यहां तक आप पहले कंप्लीट कर लो. It should happen in 10 to the minus 8 seconds, but obviously all atoms are stable. ठीक है,
आपके पास, आप जिस टेबल पे काम कर रहे हो या आप जिस सीट पे बैठे हो, सारे के सारे एटम्स जो है वो स्टेबल है, ठीक है। हेंस ऑब्वियसली दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल। कंप्लीट? डजंट मैटर, ठीक है, बस आप लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, रदरफोर्ड्स मॉडल, RM is Rutherford's model, ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल could not explain yes, E minus is electron, ठीक है। Rutherford's model could not explain atomic spectra और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है ये हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इसको बस लिख लो। could not explain atomic spectra और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जस्ट टू क्लैरिफाई, फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे देखो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज एन एडवांटेज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो एन एडवांटेज और अ मेरिट, ठीक है। सो फर्स्ट टू पॉइंट्स आर मेरिट्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। द थर्ड एंड द फोर्थ पॉइंट, sorry, the third point is also an advantage or the third point is also a merit, ठीक है। The fourth point is a demerit or a disadvantage, ठीक है। and the अच्छा ये fifth point होगा, okay, this is the fifth point, ठीक है। and the fifth point is also a demerit or a disadvantage, ठीक है। आपको पॉइंट्स पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कौन सा एडवांटेज है कौन सा डिसएडवांटेज है। इज दिस क्लियर? ठीक है, so we'll continue this in the next class. That's it for today. Thank you class.